Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 1.3. Now question number 9, classify the following numbers as rational or irrational. So सबसे पहला part जो है that is square root 23. So let's say square root 23 is equal to p by q, where p and q have no common factors except 1 and q is not 0. ये सब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व किए हैं ना, ये उसी बेस पर है. अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो काइंडली गो थ्रू इट. क्लियर? सो डिट्टो वैसे ही यहाँ पे किया हुआ है. तो अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? सो 23 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो 23 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. ऑलराइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 23 q square is equal to p square, which is q square is equal to p square by 23. अब इसको भी अगर हम लोग वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 p square के नीचे आ गया, right? And they are all same, they are all equal since 23 divides p square and 23 is a prime number, therefore 23 divides p also. अब let p be 23h, right? So 23, अब कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए. सो 23 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू हम लोग 23h लिखे हैं. सो यहाँ p के जगह लिख देंगे 23h होल स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 23 इंटू 23 इंटू एच स्क्वायर बाय 23. इस तरह से रिड्यूस हुआ तो हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 23h स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 23 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई किए. ये सब हम लोग डिट्टो एक्सरसाइज 1.2 में किए हैं. Got it? Since 23 divides q square and 23 is a prime number, therefore 23 divides q also. इसके आगे हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि वो p को डिवाइड करता है. अब हम लोग प्रूफ कर दिए कि वो q को भी डिवाइड करता है. So this proved that p and q have a common factor except 1, which contradicts with fact 1. Thus square root 23 is irrational. Got it? Now subpart 2, square root of 225, which is 15, right? ये देखिए 15 into 15 is 225. So 15 is an integer and all integers are terminating decimal. Page 16 पे आप टर्न करिए, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, right? Therefore 15 is a rational number and this is the answer. Now subpart 3, 0.3796. Now this is a terminating decimal which makes it a rational number. आप पेज 16 को रेफर करिए. Things will be easy for you, right? Subpart 4, 7.478478 infinite, right? And this is a non-terminating repeating decimal. ये देखिए 478 repeat हो रहा है and that is non-terminating. So this makes it a rational number. Subpart 5, 1.101 001 0001 quadruple 01 infinite is a non-terminating, non-repeating decimal which makes it an irrational number. Got it? And the sixth one, it is 345.0 bar 456. This is a non-terminating repeating decimal because of which it is a rational number. So these are the answers. Question number 10. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, state whether they are rational or not. And if they are rational and expressed in the form of PQ, where P and Q are integers and Q does not belong to 0, and PQ are co-prime, then what can you say about the prime factors of Q? So subpart 1, it is 37.09158. तो ये है हमारा terminating decimal. सो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टर्स है दैट विल बी 2 और 5. ऑलराइट, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वहाँ पे 2, 5 के साथ कुछ और प्राइम फैक्टर्स भी हो सकता है. तो ये चीज को आप क्लियर करिए. लेट मी रिपीट, टर्मिनेटिंग डेसिमल में प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट बी 2 और 5 ओनली
ऑलराइट, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में 2 5 के साथ कुछ और भी हो सकता है. नाउ सेकंड वन, 423.04567. नाउ this is a non-terminating decimal with repeating sets of digits, making it rational, and it will have a digit other than 2 or 5 as the prime factor for q. क्योंकि ये rational है तो आपका, तो यहाँ इसका फैक्टर्स 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी होगा. Now sub part 3, 8.901001001 infinite. Now this is a non-terminating with non-repeating decimal, making it irrational. Now fourth part, 2.34768176881. तो यहाँ पे देखिए 7681 रिपीटिंग है और इन्फिनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग है. हेंस this is a non-terminating repeating decimal, making it rational, with which are having a digit different from 2 or 5 as a prime factor of q. Now question number 11, we have to insert an irrational number between the following. तो पहला सब पार्ट, it is 1/3 and 1/2. इन दोनों के बीच में हम लोगों को लगाना है irrational number. तो सबसे पहले 1/3 को हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.333, यानी कि वो रिपीट हो रहा है, तो इट विल बी 0.3. फिर आएंगे 1/2, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, राइट. तो 0.3 एंड 0.5 के बीच का कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं. रिमेंबर, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो देयर आर इनफिनाइटली many irrational numbers between 0.3 and 0.5. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0.41, 411, 4111, 4 times 1 infinite. तो ये आपके लिए वो कुछ और भी नंबर हो सकता है. तो नंबर यहाँ पे डिफर कर सकता है, बट रिमेंबर इट शुड बी बिटवीन 0.3 and 0.5. इससे बड़ा नहीं होना. नाउ सब पार्ट 2. So the fraction is -2/5 and 1/2. So पहले डिवाइड करते हैं हम लोग. So 5 - 2 को डिवाइड करने पे आया आंसर -0.4. फिर है 1/2. आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट 0.5. तो अब हम लोग को इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है विच शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्लियर? सो हम लोग लिखे हैं 0.45, 455, 4555 is less than this entire digit and this is again less than 0.5. Got it? So हमारा आंसर क्या है? 0.45, 455, 4. Lastly 0 and 0.1 के बीच का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिखना है. क्योंकि ये होल नंबर है तो हम लोग को डिवाइड नहीं करना है. तो 0 और 0.1 के बीच का क्या नंबर है? अच्छा, ये आपका डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं था, तो इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड नहीं किए. क्योंकि डिवाइड कर रहे थे फ्रैक्शन को डेसिमल पाने के लिए, तो यहाँ ऑलरेडी डेसिमल है, राइट. तो अब इन दोनों के बीच का नंबर्स आप लिख दीजिए विच शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो वो हो गया 0.055050050 and this is the answer. Now question number 12, insert two irrational numbers between 2 and 3. तो हम लोग उसका पहले स्क्वायर करेंगे. 2 to the power 2, 3 to the power 2 हो जाता है 4 and 9. Now we will take two numbers which are not a perfect square between 4 and 9. तो वो क्या हो गया? 4 और 9 के बीच का दो ऐसा डिजिट्स which is not a perfect square, which is 5 and 6. Alright? तो अब हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? 2 lesser than square root of 5 lesser than square root of 6 less than 3. तो हमारा आंसर है square root 5 square root 6. Now question number 13, write two irrational numbers between 4/9 and 7/11. तो फ्रैक्शन में है, उसको पहले आप डिवाइड करके डेसिमल में लाइए. तो हम लोग ले आए. सो यहाँ पे हो गया 4/9 is 0.4 and 7/11 is 0.63. अब इन दोनों नंबर्स के बीच का आप नंबर्स निकालिए, इरेशनल नंबर्स, राइट. तो वो क्या हो गया? 0.4 is less than 0.51, 511, 5111 infinite, which is less than 0.61, 611, 6111 infinite,
which is less than 0.6. So हमारा आंसर ये दोनों बीच का है. Done. Now question number 14, we need to find a rational number between square root 2 and square root 3. So ये रहा square root 2 and square root 3, तो हम लोग दोनों को square करेंगे, whole square. So here we will take a number between 2 and 3 which is a perfect square. राइट तो होल स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट गया, हो गया 2 and 3. So 2 and 3 के बीच का नंबर आप लिख दीजिए. So 2 और 3 के बीच का नंबर लेना है. We should have a perfect square. तो हम लोग लिए हैं 2.25 जिसका कि स्क्वायर रूट होता है 1.5. राइट स्क्वायर रूट 2 इज लेस देन 1.5 विच इज लेस देन स्क्वायर रूट. तो हमारा आंसर है 1.5. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 15. ऑलराइट सो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे. सो यहाँ पे हो जाता है 2 इंटू 2 4 और ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो हट जाएगा तो 4 इंटू 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 15. क्लियर. सो 4 3 12, 15. अब इन दोनों के बीच का हम लोगों को नंबर लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम लोगों ने लिया, ये देखिए 12.25 एंड 12.96 जिसका की स्क्वायर रूट है 3.5 एंड 3.6. हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 12 इज लेस देन 3.5 विच इज लेस देन 3.6 and this is less than square root 50 and this is the answer. Question number 16, insert an irrational number between square root 5 and square root 7. So दोनों को पहले होल स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, हो जाएगा 5 and 7. तो माइंड यू यहाँ पे हम लोगों को irrational निकालना है. हेंस यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर लेंगे विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 5 and 7. तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा. जब कभी हम लोग रैशनल नंबर निकालेंगे तो इट शुड हैव अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द नंबर्स. राइट द नंबर शुड हैव अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन जब इररेशनल है तो इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 लेस देन 6 विच इज लेस देन 7. सो हमारा आंसर है square root 5 less than square root 6 less than square root 7. Now the last sum of this exercise, insert two irrational numbers between square root 3 and square root 7. तो उसी तरह से जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया, दोनों को पहले होल स्क्वायर करिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो गया 3 and 7. अब इन दोनों के बीच में नंबर्स इंसर्ट करना है. सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे इररेशनल निकालना है, हेंस द नंबर्स इन बिटवीन should not be a perfect square. राइट तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 लेस देन 5 लेस देन 6 लेस देन 7. तो हमारा फाइनल आंसर है स्क्वायर रूट 3 लेस देन स्क्वायर रूट 5 लेस देन स्क्वायर रूट 6 लेस देन स्क्वायर रूट 7.